इस तरह की चेंजेस भारत में आ रहे हैं तो हमें चेंज होना है। हमें चेंज होने के लिए हमें क्या करना है, आपको मैंने बताया कि एनईपी में ये बातें चेंज हो रही है, आपको इसके लिए रेडी रहना है और ये सब होगा तब जाके आप इंडिया के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी रहेगी। सो मैं आपको बोलना था और क्यों इस समय मुझे वापस जाना है, मेरा भी मीटिंग है। सो इसके साथ ही आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल साहब को, अनीता मैडम को, सारे फैकल्टीज को और मेरे बच्चों को जिन्होंने सुना मेरी बातों को। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से आपने एनईपी की अवधारणा को, एनईपी की नीड को और एनईपी जो जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया। आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ दिस 5-day workshop. In the 5-day workshop, day 1, Professor G.D. Sharma was the chief guest. He is the Vice Chancellor from Meghalaya. And then Dr. G. Ghanshyam, he was the guest speaker, he was the chief speaker in day 1, and he presented a lecture on the topic NEP 2020, Concepts and Effectiveness. Day 2, Professor G.G. Banik sir was our guest speaker. Professor G.G. Banik sir is from Meghalaya University of Science and Technology, and he presented a lecture on NEP 2020 prospects and challenges. Day 3, Professor Sheetal Sharma from Jawaharlal Nehru University, she was online, and she presented a lecture on implementation of NEP at college level. Day 4, Professor Rahul Dikkekar from New Arts, Commerce and Science College, Parner, District Ahmednagar. He joined and he gave a lecture to us on multidisciplinary approaches of NEP 2020. And today, the last day, the chief speaker, the guest speaker was Professor Santosh Panda sir, Director and Coordinator Research Degree Program, Staff Training and Research Institute, IGNOU. And our today's valedictory sessions, special guest, Professor R. Sridhar sir, he is here with us. He motivated us to understand NEP and help the country grow towards a better and knowledgeable India. The problem of unemployment became the reason for a new policy. He informed us that the problem of unemployment became the reason for a new policy which can prepare a self-dependent, skilled entrepreneurs, and hence national education policy was framed. Sir also informed about various other aspects of NEP 2020, like how it is promoting sports, how it is promoting startups, how it is promoting skill-based education, and the need to revise our syllabus, and also the teaching learning pattern. So thank you so much sir for feedbacks. If somebody either from online or offline mode, all the participants present here, I request feedbacks from you on 5-day workshop, from all the 5 days. If you have any comments or any inputs to be added to what already has been delivered to you, so your inputs are invited here for the feedback session, if any. Sir, respected principal sir. Professor Jain. सर ये हमारे प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। मैं अपने जीवन काल में देखा हूँ, स्टूडेंट रूप से जिसको सामान्य शब्द में गधा कहते हैं,
अब इसीलिए कि हमने ज्योग्राफी जब पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, तो मानचित्र डाल के एक एक लाइन भूगोल की किताब जो है पढ़ के उसमें इतना टाइम लेते थे और इतना सोचते थे, तो पूरी किताब जो है हमारा कंप्लीट होने में हमको काफ़ी टाइम लग जाता और इतना गहराई से वो जो न्यू हमारा पढ़ा था, तो क्लास में हमको कहा जाता था क्वेश्चन बैंक। और जब हम नेट परीक्षा और पीएचडी परीक्षा में बैठे, पीएचडी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा था मैंने ही प्रश्न बनाया और मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने इतनी दखल पूरा विषय पे आ गया हमारा। और उसका मेन कारण था इंटरेस्ट, शेयर इंटरेस्ट। मैं आपको सर एक चीज़ निवेदन करूँगा, आज के दिन में शायद ही ऐसे कोई बिरले टीचर और स्टूडेंट्स हैं जो गहन अध्ययन में काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकें। और उसका एक बड़ा कारण भी ये हो सकता है, हमको शुरू से योग के ऊपर और सवेरे जागने का आदत ही रहा। तो सवेरे ऐसे तो इंग्लिश में कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बुद्धिजीवी होने के लिए ये बहुत बड़ा आधार है जो भारतीय संस्कृति में था, वो आज गायब है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे, गायब होने के पीछे ये कारण है, सभी के हाथ में देखना आज जितने युवा वर्ग है मोबाइल फ़ोन है, और पता नहीं किस चीज़ में वो खुदाई करते जा रहे हैं। उनको टाइम ही नहीं, वक्त नहीं भोजन ढंग से खाने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए, परिवार पिता माता से बात करने के लिए। किताब की तो बात बहुत दूर है। तो ये जैसे सबके दिमाग में मैंने बांध रखा है। हमारे एक और विद्यार्थी का नाम न लेके मैं बता रहा हूँ सर, उनको स्कूल में भी ठोका गया और कॉलेज में भी ठोका जा रहा है और पेरेंट्स भी ठोक रहे हैं। कारण यही है कि उनमें रिसर्च मेंटालिटी, जो एक चीज़ लेके वो बैठता था, वो अलग अलग नए तरीके से कई बार एक एक प्रश्न को घंटों ले जाता था। वो खुद ही ढूंढता था और तब सेटिस्फाइड होता था जब खुद ही आंसर निकाल लेता था। वो जैसे परीक्षा ओरिएंटेड जो अप्रोचेस होता है, जैसे कहते हैं आप अभी बताए कि मगअप कर लीजिए और उसको उगार लीजिए और आपने IIT में चले गए या और किस में चले गए और अच्छा बड़ा इंजीनियर हो के ख्याति अर्जन की। अब टैलेंट था बच्चा में, लेकिन उनको शेयर इंटरेस्ट था कि मैं अपने तरीके से सोचूं, भले कई घंटे लग जाए। सामान्य लोग देखते थे, टीचर तक भी कहते थे शायद ये लड़का जो है पागल है, इनके ब्रेन ठीक नहीं है। लेकिन ये हकीकत यही है कि उनमें गहराई से सोचने की जो इंटरेस्ट था। अब इस प्रकार के बातों को आपके इसमें मतलब आजकल के जो बुद्धिजीवी वर्ग है किस प्रकार से स्थान दें, क्योंकि हमने पता है स्कूल में टीचर ठोकते थे, कॉलेज में उनको टीचर भी ठोक रहे और पेरेंट्स भी ठोक रहे, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी ऐसे नहीं कि वो स्टूडेंट डल है और पढ़ाई में भी नॉर्मल से अच्छा जरूर रहा है और हो सकता अच्छा रह सकता था अगर वो मगअप करके निकालता था विद्यार्थियों से, जो कंपटीशन वाली बात कहे हैं। लेकिन कंपटीशन मनोवृत्ति उनमें भी नहीं है और वो खुद ही सब चीज़ में गहराई में जाने के लिए और अलग अलग तरीके से सोचने के लिए उसमें जी Thank you, sir. Ms. Mimansa has a question. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की एक जो चीज़ हो रही है कि लोग यहाँ नहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, पर सर एक इस तरह से देखें, इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्री विद द पॉपुलेशन सर। तो इतने लोगों को जॉब क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये तो सर एक तरह से अच्छी बात है ना कि हमारा रिसोर्स बच रहे हैं, अगर थोड़े बच्चे या फिर कुछ बच्चे जाके बाहर जॉब कर रहे हैं सर। तो आपकी इसमें It's question is right question, but you cannot depend upon your neighbor for your food and for your education, okay, for your day-to-day activity. You have to create your own. How long you are going to depend upon your neighbor? They are going to provide you the food. They are going to provide you the job. Not good sign. You have to develop your own. That's why one consolation part is now you must have gone through the reverse, what to say, is taking place. The employed in US, they're coming back to India. That is a reverse brain drain that's taking place. And if you go through our space system, space science, many of the Americans, they are applied to be a part of Indian space science.
So there are these field we are improving a lot. But again, as you said, we should not depend upon the other to give the job. We have to create our own. We must be capable. Fine. Thank you. सर जैसे हम हमारे संतोष सर ने कहा कि वी आर फॉरगेटिंग आवर रूट्स सर, तो एक्चुअली हमारे वेद पुराण जितने भी थे उनमें मतलब बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें पहले से बता दी गई हैं। जैसे कॉपर निकलस के जन्म के पहले आर्यभट्ट ने पहले बता दिया था कि सन की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, या फिर काकभैसूरी वॉज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण, उन्हें पहली बूंद मिला था टाइम एंड ट्रैवल का, जिसके लिए आज अभी बन रहा है मैट्रिक्स जैसी फिल्म पैरेलल यूनिवर्स की। तो हमारे यहाँ अभी कि एजुकेशन में वेद पुराण को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है सर? जो चीज़ें आज लोग साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं वो तो हमारे वेद पुराण में बहुत पहले ही लिखी गई हैं, तो सर हमें आज ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वो, इसलिए जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सारे नॉलेज थे। जो जुपिटर है या फिर जितने भी प्लानिटरी कंडीशंस है, इसके बारे में सबसे पहले बताया इसका नाम क्या, जिन्होंने टेलीस्कोप नाम क्या था, Galileo, when he invented the telescope, he said the distance of Jupiter is like this, the distance of Mars is like this. परंतु हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले और भी पहले ऋषि भृगु होंगे, ऋषि को मैं साइंटिस्ट आज की डेट में दे आर साइंटिस्ट, ओके, जो साइंटिस्ट थे भृगु थे या फिर विश्वामित्र थे या पाराशर थे, उन्होंने कुछ नहीं था, उन्होंने सबको ऐसे